हैप्पी सैबत। मैं हूँ विशाल चंदर और मैं शेषर चंदर और हम आप सभी को इस सप्ताह का हमारा वेस्पर्स के भाग में स्वागत करते हैं। तो आज हमारा जो बाइबल टेक्स्ट है कहाँ से आता है? आज का जो टेक्स्ट है वो फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 से आता है। कास्ट ऑल योर एंजाइटी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। जी हाँ, धन्यवाद। इसी टेक्स्ट से हम आप सभी को एक हार्दिक स्वागत करते हैं और हम हमारा जो होली स्पिरिट का एक मास्टर्स वेलकम देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपना वक्त को निकालकर हमारे संग इस वेस्पर्स के भाग में शामिल हो गए हैं। तो आप सभी दिल थाम के बैठिए क्योंकि हम अपना पहला गीत में भाग लेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़ के देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम किसी से न डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे। कोई चुभन ना होगी हमको, कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे। कोई चुभन ना होगी हमको, पा सके वो ऐसा ही जतन करेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। उनके सहारा यीशु का, मंजिल पर पहुंचेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे। गाते बजाते उठे बैठे, केवल प्रभु जी तेरी महिमा करेंगे। गाते बजाते उठे बैठे, केवल प्रभु जी तेरी महिमा करेंगे। जीवित वचन को तेरे हरदम प्रचार करेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़ के देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम किसी से न डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। Pastor Mark Finley, the question is, looking at the end time events and the rate at which the world is moving now, will we reach 2030 without a Sunday law being forced? Is there any way that we could know that? Are we going to make it to 2030, Pastor Mark? There's a couple of things that I think are really important to understand from a biblical standpoint. You look at Scripture, and the Bible says in the book of Romans, it says, for he will finish his work and cut it short in righteousness. So God is going to cut his work very, very short. The final movement is going to be very, very rapid. If you look, for example, at Acts chapter 1, verse 8, it says, speaking of the disciples in Christ's day, you shall receive power and the Holy Spirit will come upon you. So God predicts the mighty outpouring of the Holy Spirit
Revelation 18 verse 1 says that the earth is going to be filled with the glory of God. Habakkuk 2 verse 14 and 15 says that the earth will be filled with the knowledge of God as waters cover the sea. There in Matthew 24 verse 14 it says that in this gospel the kingdom shall be preached as all the world to a witness to all nations. So God is not waiting for something on the calendar. He's not waiting for more earthquakes, famines, fire, floods, not even waiting for a national Sunday law. He's waiting for a spiritual revival among his people where the Holy Spirit is poured out upon them. The earth is lightened with the glory of God. The gospel goes to the ends of the earth. And that event hastens the crisis that takes place. That event allows the angels to let the winds of strife go, because Revelation 7 verse 1 and 2 says that the angels will hold the winds of strife till the servants of God are sealed in their foreheads. So what is God waiting for? The proclamation of the gospel to the ends of the earth by a people that love him, that give glory to his name, and a people who are committed to him. Then he'll let these winds of strife blow. And so the National Sunday Law and these final events could be ushered in very, very, very quickly. मेरे आदर महिमा तुझे ज्ञान धन्यवाद प्रभु मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है शक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और रहेगा तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में ज्ञान और धन्यवाद प्रभु ये स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और रहेगा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और रहेगा तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और रहेगा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और रहेगा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और रहेगा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और रहेगा
27 में आप सभी को इस सप्ताह का हमारा हेल्थ मैसेज में स्वागत करती हूँ। आज हमारे हेल्थ टॉक मछली यानी कि फिश के विषय में रहेगा और आज हमारा जो हेल्थ टॉक का सोर्स है healthline.com। तो और जानकारी के लिए आप वहां पर जाकर खोज सकते हैं। Leviticus 11 verses 9 to 10 कहता है, These shall ye eat of all that are in the waters, whatsoever hath fins and scales in the waters, in the seas and in the rivers, them shall ye eat. And all that have not fins and scales in the seas and in the rivers, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters, they shall be abomination unto you. तो यहाँ पर हमको परमेश्वर बतलाता है कि किस तरह का मछली या किस तरह का सी क्रीचर्स हम कंज्यूम कर सकते हैं और क्या हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हम पढ़े थे वो बतलाया कि जिसमें फिन्स और स्केल्स है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि जो मछली जो भी सी क्रीचर जिसमें फिन्स और स्केल्स नहीं है वो हमें नहीं चाहिए खाना। तो आज जैसे हम यहाँ पर देखें कि जो मछली के पास फिन्स और स्केल्स है वो खा सकते हैं, हम देखते हैं इनका बेनिफिट्स क्यों हम खाएं और क्या क्या इफेक्ट्स है हमारे बॉडी पर। पहला, दिस may help prevent and treat depression, क्योंकि जो मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये जो एसिड्स है हमारा जो शरीर है उसमें डिप्रेशन का जो एंजाइम्स है जो एसिड्स है उससे फाइट करता है एंड इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एंड मेडिकेशंस। 2, फिश में इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। हम जानते हैं कि कई लोग हैं जो रात में सो नहीं सकते हैं और रात भर जागे रहते हैं। तो अगर आप इनमें से हैं तो आप मछली खाइए जिसमें फिन्स और स्केल्स हैं ताकि आपको नींद आए और ना कि वैसा नींद जो थोड़ी देर में टूट जाएगा परंतु क्वालिटी स्लीप यानी कि अच्छा नींद। 3, increases mental health studies। तो यहाँ पर बतलाता है कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो और जोर कर देता है, क्योंकि अगर हम कई लोग को देखते हैं जैसे ही बुढ़ापा आते हैं उनका जो मेंटल फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, परंतु अगर हम मछली खाएं तो ये हमारा मेंटल हेल्थ को बढ़ा देता है। और आखिरी पॉइंट को हम देख लें कि अगर हम मछली खाएं तो इट ट्रीट्स आयरन डिफिशिएंसी। अगर आपका जो शरीर में आयरन कमती रहता है या रेड ब्लड सेल्स कमती रहता है तो आप मछली खाएं, क्योंकि मछली खाने से हमको अच्छा सोर्स ऑफ आयरन मिलता है और हमारा जो रेड ब्लड सेल्स और बढ़ जाता है। तो कई लोग फिर ये सवाल करते हैं कि क्या हम मछली हर रोज खाएं। यहाँ पर एक प्रोफेसर है एरिक रिम, वो कहता है कि फॉर मोस्ट इंडिविजुअल इट्स फाइन टू ईट फिश एवरी डे एंड इट्स सर्टेनली बेटर टू ईट फिश एवरी डे देन टू ईट बीफ एवरी डे। कई लोग को बीफ पसंद है, कई लोग को चिकन पसंद है, परंतु यहाँ पर डॉक्टर एरिक रिम जो न्यूट्रिशन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर हमको बतलाता है कि हम मछली हर दिन खा सकते हैं और जैसे आज हम सारे बेनिफिट्स देखें उसी वजह से हम मछली हर रोज खा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस सप्ताह का हमारा हेल्थ टॉक आपको अच्छा लगा और हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले सप्ताह। शुभ रात्रि।
सेवर, मैं सेसल चंदर आप सभी को इस आत्मिक भोजन के भाग में स्वागत करते हैं। आज का विषय है द राइट मिरर, यानी कि सही आईना। तो चले हम आगे देखें आज का आत्मिक भोजन से हम क्या सीख सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। आपकी सेल्फ इमेज यह निर्धारित करेगी कि आप अपनी पूरी क्षमता या पोटेंशियल तक पहुंचते हैं या नहीं। यदि आप अपने आप को एट अ डिसएडवांटेज, लैकिंग या अनएट्रैक्टिव हुए देखते हैं तो यह आपके जीवन को सीमित करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास बड़ी क्षमता नहीं है, इट्स योर सेल्फ इमेज इज डिस्टॉर्टेड। कुछ साल पहले मेरे दोस्त मुझे मेलबर्न में एक कार्निवल में ले गए। आईना से भरा यह कमरा अट्रैक्शंस में से एक था। आप एक आईना के सामने चलते हैं या आपको 2 फीट लंबा दिखलाता है। दूसरे वाला आईना आपकी छाती को बड़ा दिखलाता है। There are mirrors that leave your body normal, but your head is shrunk, your mouth, nose, features all out of proportion. Certain mirrors make you look 100 pounds heavier, a body all out of proportion. इनमें से कोई भी इमेज आपको सच्चा इमेज नहीं दिखलाता था। It's not who you really are, they are all distorted. और निश्चित रूप में से हम यह जानते थे कि यह केवल मनोरंजन के लिए है और हम अपने आप को उन आईने में देखकर खूब हंसते थे। असल जीवन में हम में से कितने लोग ये नहीं पहचान पाते जब हम एक डिस्टॉर्टेड मिरर को देख रहे होते हैं। हम खुद को ऐसा देखते हैं कि हम टैलेंटेड नहीं हैं, अट्रैक्टिव नहीं है, अनक्वालिफाइड है और हम अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं। जो डिस्टॉर्टेड इमेज है वो हमें हमेशा पीछे की ओर खींचता है। क्या होगा अगर हमें गलत आईने से छुटकारा मिल जाए? शास्त्र कहता है कि आप परमेश्वर की इमेज में बने हैं। उसने आपको प्रतिभाशाली, सुंदर, स्मार्ट और आत्मविश्वासी बनाया है। आप उस पर्पस के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड बनाए गए हैं जो उसने आपके लिए निर्धारित किया है। लेकिन शत्रु की चाल आपकी सेल्फ इमेज को हर समय बिगाड़ना चाहता है। वह नहीं चाहता कि आप खुद को वैसे ही देखें जैसे आप वास्तव में हैं। उस कार्निवल की तरह, like the mirrors in the carnival, he'll put up these distorted mirrors. बाइबल में सामसिस्ट ने कहा, आप fearfully और शानदार रूप से बनाए गए हैं। But when you look in this mirror, you'll see all your flaws. Everything you don't like will be exaggerated. आपको माफ कर दिया गया है और रिडीम्ड कर दिया गया है। लेकिन जब आप उस आईने में देखते हैं तो आप अपनी सभी गलतियों और असफलताओं को देखेंगे। Looking back at you is a guilty, unworthy, undeserving person. It's a distorted mirror. जेम्स चैप्टर 1 में कहता है, परमेश्वर का वचन आईना के समान है। यह दर्शाता है कि आप वास्तव में कौन हैं। परमेश्वर आपके बारे में जो कहते हैं वह ट्रू इमेज है। आपको अपने सामने रखने की जरूरत है। आप अपनी नेगेटिव इमेज से सफल नहीं होंगे। एक चुंबक या मैग्नेट की तरह हाउ यू सी योरसेल्फ विल कीप पुलिंग यू टुवर्ड इट। यदि आप अपने आप को स्ट्रगलिंग करते हुए देखते हैं, मुश्किल से उबर रहे हैं, बिखरी हुई मानसिकता है, तो आप इन सारी बुरी चीजों के ओर बढ़ रहे हैं। क्या होगा यदि आप अपनी आईना बदल दें? स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ एज ब्लेस्ड, prosperous, talented, having a bountiful year, blessings chasing you down. Then, because you have the right image, because you are in agreement with God,
you are moving toward abundance, overflow, good breaks, a bountiful life. If you see yourself as lonely, not a good personality, inferior, it's pulling you toward loneliness. Not having friends, not meeting anyone. Do yourself a favor, change your mirrors. अपने आप पर एक एहसान करो, अपने आईना बदलो. तुम सुंदर हो, तुम अट्रैक्टिव हो, तुम वन ऑफ अ काइंड हो. आपको अनुग्रह के साथ ताज पहनाया गया है. तुम एक पुरस्कार हो. जो कोई आपको पाएगा उन्हें ऐसा लगेगा कि वे एक लॉटरी जीत गए हैं. When you have the right mirror, you'll put your shoulders back. You'll hold your head up high and you'll carry yourself like the royalty God created you to be. Israelites को यही करना था. वे बहुत वर्षों से स्लेवरी में थे और परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला, लाल समुंदर को अलग किया और वे प्रोमिस लैंड की ओर बढ़ गए. रेगिस्तान में उनके पास कोई टेंपल नहीं था जहां वे पूजा कर सकते थे. उनके पास एक तंबू था जिसे वे टेबरनेकल कहते थे, जहां वे मिलते थे. इससे पहले कि प्रीस्ट उस उल्टा एरिया में जा सके, उन्हें टेंट के एंट्री पर पानी के एक बड़े कटोरे में अपने हाथ और पैर धोना होता था. खास बात यह है कि यह कटोरा कैसे बनाया गया होता था. एक्सोडस चैप्टर 28 में कहता है कि मूसा ने इस बड़े वश बेसन को ब्रोंज मिरस से बनाया था, जिसे इजराइल की महिलाओं ने पिघलाया था. Mirrors in that day weren't made out of glass, they were made out of polished bronze. वे इतने चमत्कार होते थे कि आप अपना रिफ्लेक्शन देख सकते थे. इजराइल के महिलाओं को ये मिरर्स इजिप्शियन से तब मिले जब वे गुलामी से बाहर निकल रही थी. परमेश्वर ने उन पर, उनके बंधुओं पर अनुग्रह किया और उन्होंने उन्हें अपना सोना, चांदी और उत्तम वस्त्र दिए. These mirrors were valuable to the women. They had nothing special for years. Now they had this nice bronze mirror. Then Joseph comes along and says, "Give me your mirrors. I want to melt them down and make a bowl where the priest can cleanse themselves." He could have said, "Give me your pots and pans. Give me your hammers and chisels. I'll make the wash basin out of them." But God said to the women, "Give me your mirrors." When these women looked in the mirror, they saw former slaves. They saw tired, defeated, unqualified people staring back. You can imagine being in bondage for years, being mistreated, working day and night. Those mirrors only reminded them of all they'd been through, how unfair it was, how unattractive, inferior they were. God showed up and said, "Give me those mirrors." He was saying, "Give me your image. You can't become who I created you to be looking in those mirrors. Let me have them." Notice what God did. He melted down the bronze mirrors, signifying, "I am melting down anything that does not reflect who I made you to be." परमेश्वर कह रहा है कि मैं शर्म, दिल के दर्द, गिल्ट, मिसट्रीटमेंट और अनवर्दीनेस को पिघला रहा हूं. अगली बार जब आप इस आईना को देखेंगे तो यह सफाई के लिए एक कटोरी में होगा, जिसका अर्थ है कि मैं अतीत की नेगेटिव चीजों को धो रहा हूं. दुश्मन ने जो पाप करने की कोशिश की है उसे धो रहा हूं. आपके द्वारा की गई गलतियों को धो रहा हूं. जो आपको नहीं मिला, जो अनफेयर ट्रीटमेंट आप पर हुआ, और मैं आपको खुद को देखने के एक नया तरीका देने जा रहा हूं. परमेश्वर कह रहे हैं, आप अपने भाग्य तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप मुझे अपनी इमेज नहीं देते. शास्त्र में जैकब को बेईमान और लोगों को धोखा देने के लिए जाना जाता था.
he tricked his brother out of his birthright, went around manipulating and conniving. His name even means swindler, supplanter, deceiver, and he lived up to it. आप कल्पना कर सकते हैं कि उसने अपने आप को किस नजर से देखता था। वह अपने कानों में एक छोटी सी आवाज फुसफुसाते हुए सुनी, जैकब, तुम इससे बेहतर हो। I have a plan, a destiny for you to fulfill. I put greatness in you. परमेश्वर कह रहे थे, जैकब, मुझे अपनी इमेज दो, उस डिस्टोर्टेड मीरा से छुटकारा पाओ। मुझे यकीन है कि जैकब के दिल और मन में यह सोच अटकी हुई थी, बिल्कुल नहीं, यह वही है जो तुम हो। तुम एक धोखेबाज हो, तुम एक ठग हो, बस इसे स्वीकार करो। साल बीत गए, कुछ नहीं बदला। But one day, Jacob did what I'm asking us to do. Despite his flaws, despite his mistakes, he went down to the brook alone one night to be with God. उसने सोचा, मैं इस तरह जीने से थक गया हूं, मैं अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता हूं। वह वास्तव में कह रहा था, मैंने खुद को एक असफल के रूप में देखा हूं, मैंने निंदा की है, मुझे पसंद नहीं है कि मैं कौन हूं। परमेश्वर, मैं तुम्हें अपना आईना देने जा रहा हूं। मैं खुद को ऐसे देखने चाहता हूं जिस तरह से तुम मुझे देखते हो। The night he wrestled with an angel, he thought it was a man, but he wrestled with him. The angel wouldn't let him go. At daybreak, the angel said to him, उस एंजल ने उससे कहा, आज से आपका नाम जैकब नहीं होगा, परमेश्वर ने आपको एक नया नाम दिया है। आज से आपका नाम इजराइल है। इजराइल का मतलब है प्रिंस विद गॉड। God was saying, I am taking that mirror that shows you as a deceiver, trickster, conman, and I am melting it down, getting rid of all those impurities. Now your image will be a prince with God. When he saw himself as a prince, he started making choices that honored God. Out of Jacob came the 12 tribes of Israel. It would have never happened if he had kept looking in the wrong mirror. आप कौन सा आईना देख रहे हो? Are you letting people, your past, what you are up against determine your image? Well, Cecil, this giant is so big, I am afraid. I've had in disappointments. I can't accomplish my dreams. That's a distorted mirror. यह वह नहीं है जो आप वास्तव में है। उस आईना से छुटकारा पाएं और परमेश्वर के वचन पर जाएं, उसे आपकी इमेज को परिभाषित करने दें। यदि आप स्वयं को उस रूप में देखेंगे जिस रूप में परमेश्वर आपको देखता है, तो यह आपके डैमेज सेल्फ इमेज को ठीक कर देगा। That's the only thing that's holding some people back, the way they see themselves. मैं विश्वास करता हूं और घोषणा करता हूं, आज एक नया दिन है, क्योंकि आपके पास सही आईना है। गिडियन की तरह आप महानता को अपने में से निकलते हुए देखने वाले हैं। डेविड की तरह आप जाइंट्स को हराने वाले हैं। जैकब की तरह तुम भी इजराइल बनने जा रहे हो। Not defined by your mistakes, but a prince with God. बहुत धन्यवाद दर्शकों कि आपने ये प्रोग्राम को सुना, और हम यहीं पर समाप्त करेंगे। शुभ रात्रि। मैंने अपनी जान
Hosanna.